So hi everyone, in today's lecture we'll be discussing ellipse. Ellipse के सब details यहाँ पे mention कर दूंगा मैं. This total discussion, this total session, it will be MST CET oriented. Ellipse possesses two axes, major axis and minor axis. This is major axis. This is minor axis. This point is called as center of ellipse. This is center of ellipse whose coordinates is given by 0, 0. Ellipse के center के coordinate 0, 0 है. Referring this as x-axis, this as x-axis and this as y-axis. This standard form of ellipse जहाँ पे major axis is considered as x-axis and minor axis is considered as y-axis here. Now length of major axis, total major axis का length, okay, this is 2a. This total length is basically 2a. That means this distance is actually a, even this is a, that means coordinate of this point is a comma 0, coordinate of this point is minus of a comma 0. This is a line about which this ellipse is symmetry actually. और हमने parabola पे भी ये study किया है. Line about which parabola or line about which this ellipse is symmetric is called as axis of ellipse. So this is basically major axis of ellipse. This is major axis of ellipse. Major axis of ellipse. This is minor axis of ellipse. Now minor axis, even ellipse is symmetric about this axis. इस axis के around भी ellipse मतलब symmetric है. So we are calling this axis as minor axis just because its length is lesser than length of the major axis. Now total length of major axis is 2a and total length of minor axis is 2b, where coordinate of these vertices are 0, b and 0, minus of b. Total length of this minor axis is 2b here. अभी इसे हम vertices refer करेंगे because these are point of intersection of ellipse and axis of ellipse. हमें पता है vertices मतलब क्या होता है. Vertex of ellipse means point of intersection of axis and ellipse. Even parabola में भी हमने study किया था. Point of intersection of parabola and axis of parabola is called as vertex. Parabola में vertex था origin, that is equal to 0, 0. Ellipse के केस में total 4 vertices है because this major axis cuts this ellipse at 2 different points. Even this minor axis cuts this ellipse at 2 different points. Okay. Ellipse possesses 2 focus. Okay, so coordinate of foci of ellipse is basically a comma e, ae comma 0, and coordinate of second focus is basically minus ae comma 0, where this distance is actually ae. Even this is ae. This distance is ae basically. Where E is eccentricity of ellipse. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला eccentricity का, ellipse के eccentricity का फॉर्मूला. Eccentricity of ellipse, that is E square is given by a square minus of b square whole divided by a square. तो बेसिकली eccentricity अगर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है, दैट मीन्स ए बी वैल्यू दिया है, ए एंड बी वैल्यू दिया है, तो बेसिकली eccentricity हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे ये भी पॉइंट मेंशन कर देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, length of major axis of ellipse is 2a and length of minor axis of ellipse is 2b. Okay, so total length of minor axis is 2b. Even question में semi major axis and semi minor axis का भी यूज होता है. where semi major axis is simple है. semi major axis is just a, बस major axis का half करना है, that is semi major axis. Even semi minor axis, length of semi minor axis is just b. Total minor axis का basically half करना है, that is equal to b. Now equation of this ellipse is given as x square by a square.
ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जस्ट, इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स इज गिवन एज x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, इलिप्स का इक्वेशन इज x square by a square plus y square by b square is equal to 1. अभी इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर फॉर एग्जांपल x square by 16 plus y square by 25 is equal to 1 है, ओके, y square by फॉर एग्जांपल 9 is equal to 1 है, ओके, दैट मीन्स रेफर करो जस्ट a square is 16, दैट मीन्स a is 4, दैट मीन्स 2a दैट इज इक्वल टू 8, b square is 9, that means b is equal to 3, that means 2b that is equal to minor axis that is equal to 6 here. तो ये हमें कंपेयर करके फाइंड करना होता है. So this is equation of ellipse, equation of this ellipse, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. तो आपको ये ध्यान में रखना है इलिप्स करते वक्त, अगर a का वैल्यू ज्यादा है, if value of a is greater than value of b, that means ellipse का शेप बेसिकली इस टाइप रहेगा, ओके, इलोंगेटेड रहेगा इस डायरेक्शन में. अगर वैल्यू ऑफ b ज्यादा है, इफ वैल्यू ऑफ b इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ a, दैट मीन्स इलिप्स बेसिकली इस डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ रहेगा. सो उस केस में सब बेसिकली फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब बेसिकली y एक्सिस पे चला जाएगा. तो दिस सेकेंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स जो कि हम इसके बाद करने वाले हैं. तो जस्ट ये कंसिडर करो आप कि फॉर दिस इलिप्स वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ b. इस इलिप्स के लिए a का वैल्यू बेसिकली ज्यादा होना चाहिए b के वैल्यू से, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में इलिप्स इलोंगेटेड रहेगा. अभी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स. यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस थर्ड, फोर्थ, दिस फिफ्थ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स. अभी फोकस में डिस्टेंस आप देख सकते हो, दिस इज AE, again this is AE, that is equal to twice AE. So distance between foci of ellipse is basically twice AE. अभी हमने डायरेक्ट्रिक्स अभी तक स्टडी नहीं किया. So डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स बेसिकली यहाँ पे होता है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स. ये साइड में बेसिकली दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स y एक्सिस से a डिवाइड बाय e डिस्टेंस पे होता है. डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स y एक्सिस से a डिवाइड बाय e डिस्टेंस पे होता है. दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a बाय e. देख सकते हो आप यहाँ पे x एक्सिस पे a बाय e डिस्टेंस जाने के बाद वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a बाय e. x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे a बाय e डिस्टेंस जाने के बाद वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बाय e. दिस आर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्चुअली. तो x इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई e भी हम रेफर कर सकते हैं. इवन फोकस भी प्लस और माइनस AE, 0 हम रेफर कर सकते हैं इसे. यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स. ओके, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज ट्वाइस a बाई e प्लस a बाई e करना है बस, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस a बाई इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हियर. अभी इलिप्स के केस में लैटिस रेक्टम, इवन पैराबोला के केस में भी लैटिस रेक्टम हमने डिफाइन किया था. लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला मींस लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला. सेम इलिप्स में भी सेम है पैराबोला लैटिस रेक्टम. लाइन पासिंग थ्रू दिस फोकस, ओके, सो लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ इलिप्स. दिस लाइन इज कॉल्ड एज लैटिस रेक्टम. इवन यहाँ पे भी लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड एज लैटिस रेक्टम हियर. सो दिस लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स, दिस also lattice rectum of ellipse. Now length of lattice rectum, total length of lattice rectum, sixth point हुआ. इसेंट्रिसिटी को 7th पॉइंट कंसिडर करेंगे हम लोग. 8 नंबर पॉइंट, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a. लैटिस रेक्टम का जो भी लेंथ है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम याद रखना है आपको, 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a फॉर्मूला है. एंड पॉइंट ऑफ 2b स्क्वायर बाय a मीन्स बेसिकली b स्क्वायर बाय a प्लस b स्क्वायर बाय a, दैट इज 2b स्क्वायर बाय, मतलब ये b स्क्वायर बाय a, इवन दिस इज b स्क्वायर बाय, सो दिस इज 2b स्क्वायर बाय. Now coordinates of end points of lattice rectum, मतलब lattice rectum के end point के coordinate हमें स्टडी करना है अभी. So
coordinate of this point, x coordinate of this point is basically AE, and y coordinate is b square by a here. Y coordinate is b square by a, because total length of lattice rectum is 2b square by a. That means this is b square by a, this is b square by a. The end point of lattice rectum is AE. X coordinate is AE and y coordinate is b square by a minus b square by करना है यहाँ पे, just negative direction में. End point of this lattice rectum, x coordinate is minus of AE and y coordinate is minus of b square by a. Even for this lattice rectum, x coordinate is minus of AE but y coordinate is b square by a, positive direction of y axis है. Okay, so y coordinate will be b square by a here. Ellipse के केस में और एक प्रॉपर्टी है, यूजफुल प्रॉपर्टी एक्चुअली, 9th one. Okay, sum of focal distance of point, any point on ellipse is equal to 2a. प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी आपको याद रखना है ये. सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, बेसिकली फोकल डिस्टेंस क्या होता है? एक रैंडम पॉइंट आप एज्यूम करो, एक रैंडम पॉइंट, कंसीडर दिस पॉइंट एज से फॉर एग्जांपल P. Focus, this is focus 1, this is focus 2. I am considering this focus as S1. I am considering this focus as say S2. हमें फाइंड करना है फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस. अभी यहाँ पे इलिप्स के केस में देयर आर टू फोकल डिस्टेंस एक्चुअली, क्योंकि दो फोकस है. ओके, सो दिस फोकल डिस्टेंस नंबर 1, ये भी फोकल डिस्टेंस है एक्चुअली, इवन दिस इज फोकल डिस्टेंस. ओके, अभी फोकल डिस्टेंस का एडिशन करना है हमें, दैट मीन्स PS1 प्लस PS2. ओके, सो PS1 प्लस PS2 दैट इज इक्वल टू 2a. ये बेसिकली प्रॉपर्टी है इलिप्स के केस में जो कि हमें याद रखना है. सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, ओके, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस जस्ट ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू 2a. द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी इलिप्स ऑफ दिस शेप इज बेसिकली 2a. अभी ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आप प्लीज नोट्स बना के रखो पहले. Okay, let x1 y1 be any point on this ellipse. Let x1 y1 be any point on this ellipse. We are discussing equation of tangent to this ellipse. Equation of tangent at point x1 y1 is given by. Okay, now if x1 y1 is a point which lies on the ellipse and if we need to find equation of tangent to this ellipse, मतलब tangent का हमें equation find करना है. tangent at point, equation of tangent at point x1 y1 to this ellipse is given by x1 by a square plus y1 by b square is equal to 1. बहुत ही सिंपल है एक्चुअली. एज इट इज इलिप्स का इक्वेशन कॉपी करना है हमें, x square plus y square by square y square by b square is equal to 1. जस्ट इंस्टेड ऑफ x square x1, इंस्टेड ऑफ y square y1 सब्स्टिट्यूट करना है हमें यहाँ पे. So this is equation of tangent at point on the ellipse. अभी हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स. तो ये यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, एक छोटे से डायग्राम बना देता हूँ फिर से. दिस इलिप्स, इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स इज x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now we have a line here, okay? We have a line, for example, say y is equal to mx plus c is the equation of this line. Now if y is equal to mx plus c, this line is a tangent to this ellipse, okay? Then c has to be plus or minus under root of a square m square plus b square. c has to be under root of a square m square plus b square. मतलब this condition of tangency है. मतलब condition of tangency मतलब क्या? अगर आपको y is equal to mx plus c, ये लाइन ellipse को tangent चाहिए, where c is unknown here. c is basically unknown जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. m is known means m फिक्स किया है हमने. अगर हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें tangent का इक्वेशन फाइंड करना है, ऐसा tangent जिसका स्लोप 2 है. ओके,
मतलब बेसिकली इस डायरेक्शन का टेंजेंट फाइंड करना है हमें। सो इस डायरेक्शन में इस इलिप्स को दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक ये फर्स्ट वाला टेंजेंट है, ओके, देन दिस इज सेकेंड टेंजेंट। सो प्लस एंड माइनस, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस और माइनस यूज किया हमने, ओके। सो प्लस, अगर हमने प्लस यूज किया तो फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट का, देन माइनस के लिए शायद ये इक्वेशन आ जाए। सो दिस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब हमने स्लोप फिक्स किया, मतलब समझ लो स्लोप इज 2 फॉर एग्जांपल, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिकम्स y इज इक्वल टू 2x, बस c की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना होता है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ a स्क्वायर वैल्यू ऑफ b स्क्वायर ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स हियर, ओके। मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल में बोल देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल से इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय से 3 इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको ये फाइंड करना है, अगर आपको इस इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, अगर आपको इस इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, बट टेंजेंट कौन सा टेंजेंट? अ टेंजेंट हुज स्लोप इज 1, वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुज स्लोप इज 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा y इज इक्वल टू mx, m स्लोप इज 1, सो x प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर वैल्यू इज 4, m स्क्वायर वैल्यू इज 1, दैट मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर वैल्यू इज 3 एक्चुअली, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस रूट 7, ये फर्स्ट टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा, ओके। देन सेकेंड टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ रूट 7, ये बनेगा सेकेंड टेंजेंट। तो स्लोप इज 1, दैट मीन्स स्लोप बेसिकली ये लाइन का स्लोप ऑलमोस्ट 1 है, ओके। तो ये फर्स्ट टेंजेंट है एंड दिस इज सेकेंड टेंजेंट हियर। सो y इज इक्वल टू x प्लस रूट 7, y इज इक्वल टू x प्लस रूट 7 एक टेंजेंट का इक्वेशन रहेगा, दूसरे टेंजेंट का ऑटोमेटिकली इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ रूट 7। तो बेसिकली इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस रूट 7 है, और इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस रूट 7 है, बिकॉज दिस y इंटरसेप्ट is positive in this case, correct है, y intercept is positive for this line and y intercept is negative for this line, देख सकते हो आप यहाँ पे y intercept is negative here, okay। so y is equal to x minus root 7 इस tangent का इक्वेशन है। ये हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स, डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। तो वो वाला पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लास्ट पॉइंट, डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। Now, director circle of ellipse means director circle is basically locus of points from which tangents drawn to the ellipse are perpendicular to each other। मतलब ये डायरेक्टर सर्कल से अब आप टेंजेंट ड्रॉ करो इलिप्स को, these two tangents are perpendicular, ये प्रॉपर्टी है डायरेक्टर सर्कल की। सो डायरेक्टर सर्कल इज बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट का सेट है, आप कहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ करो इस इलिप्स पे, those two tangents are perpendicular to each other। basically outside point से इलिप्स पे 2 tangents are possible, देख सकते हो आप, यहाँ से भी हम लोग 2 tangents यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। now property of डायरेक्टर सर्कल का प्रॉपर्टी है कि फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट अगर आपने 2 tangents ड्रॉ किए इलिप्स को, these 2 tangents are perpendicular। तो डेफिनेशन ये है डायरेक्टर सर्कल का ही, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय x square plus y square is equal to a square plus b square। Equation of director circle of ellipse is given by x square plus y square is equal to a square plus b square, where equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 0। तो इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है x square plus y square is equal to a square plus b square। अभी इलिप्स का एक आखिरी पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स,
तो इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा. Parametric equation of ellipse is x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta is basically parametric equation of ellipse. ये आपको याद रखना है. अभी हम डिस्कस करेंगे ellipse whose major axis is along the y axis here. Equation of such ellipse is same as that of previous ellipse, that is equal to x square by a square plus y square by b square is equal to 1. एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, जस्ट b वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ a, मीन्स वैल्यू ऑफ b इज एक्चुअली ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ a हियर. इन दिस केस length of major axis, so this acts as a major axis here, so total length of major axis is b plus b, that is equal to 2b. तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं पॉइंट. फर्स्ट length of major axis is 2b here. Second, length of minor axis is 2a here. So similarly, length of semi minor is a, length of semi major is equal to b here. तो यहाँ पे फोकस ऑफ इलिप्स रहेगा मेजर एक्सिस पे, दैट मीन्स y एक्सिस पे. सो डिस्टेंस x एक्सिस से फोकस तक का डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू बी ई हियर. ओके, so coordinate of focus becomes 0, b and coordinate of second focus becomes 0, minus of b. तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ coordinate of focus. Coordinates of foci is basically plus 0, plus or minus be. 0, plus or minus be. यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स रहेगा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज b by e हियर, b divided by e. दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बिकम्स y is equal to b by e, बिकॉज y एक्सिस पे b by e डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे. सेम इक्वेशन ऑफ दिस सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, y एक्सिस पे माइनस ऑफ b बाई, बेसिकली नेगेटिव y एक्सिस पे b बाई ई ट्रैवल करने के बाद मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ई, वेयर e इज इसेंट्रिसिटी. तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस केस में, इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू e स्क्वायर इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर. जब इलिप्स का एक्सिस, मेजर एक्सिस बेसिकली x एक्सिस था, ओके, ये वाला इलिप्स, इन दैट केस इसेंट्रिसिटी वाज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर. तो यहाँ पे बस a और b स्विच करना है. सो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स. अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना है lattice rectum. Now we know that lattice rectum is a line. Lattice rectum is a line perpendicular to major axis and passing through focus here. So this is our lattice rectum here. This is lattice rectum. This is lattice rectum. Lattice rectum is a line perpendicular to major axis and passing through focus of ellipse. Coordinate of focus is 0, BE, 0, BE. Okay. Now we need to calculate endpoints of lattice rectum here. We need to calculate endpoints of lattice rectum. पहले वहाँ पे lattice rectum का length mention कर देता हूँ मैं यहाँ पे. Fifth case में length of lattice rectum is equal to, तो आप लिंक करो ये वाले इलिप्स के लिए, मतलब मेजर एक्सिस जिसका x एक्सिस था उस इलिप्स के केस में लैटिस रेक्टम लेंथ वाज 2b स्क्वायर बाय a. लैटिस रेक्टम लेंथ वाज 2b स्क्वायर बाय a. यहाँ पे बस स्विच करना है, तो यहाँ पे बस 2a स्क्वायर बाय b करना है, 2a स्क्वायर डिवाइड बाय b करना है. दैट मीन्स 2a स्क्वायर बाय b इज बेसिकली नथिंग बट a स्क्वायर बाय b प्लस a स्क्वायर बाय b. That means lattice rectum का length अगर 2a square by b है, that means this is a square by b and this is a square by b. Okay, so coordinate of this point, x coordinate of this point means this distance, that is equal to a square by b, and y coordinate of this point is basically this distance, that is equal to be.
x coordinate of this point is this distance, that is a square by b, but negative direction में. Okay, so minus of a square by b, and y coordinate of this point is be. Similarly, x coordinate of this point is a square by b, and y coordinate is minus of be here. Okay, x coordinate is minus a square by b, and y coordinate is minus of be. So these are basically end points of lattice rectum, coordinates of end points of lattice rectum here. In this ellipse, sum of focal distance of any point on this ellipse is given by 2p. So एक random point मैं यहाँ पे assume कर लेता हूँ यहाँ पे. Okay, so this is basically focal distance of a point from focus. Okay, so basically ellipse को दो फोकस है, दैट मीन्स दो फोकल डिस्टेंस होंगे ellipse को, एंड सम ऑफ दिस टू फोकल डिस्टेंस, इसे p कंसिडर करेंगे, इसे s1 कंसिडर करेंगे, इसे s2 कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स ps1 प्लस ps2. Sixth point, ps1 plus ps2 is given by 2b here. So sum of focal distances is equal to 2b. Sum of focal distance of any point on this ellipse, कौन से भी point का sum of focal distance is equal to 2b. अभी हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ tangent to ellipse. Seventh point, equation of tangent to ellipse at point x1 y1. Same equation actually. Ellipse and for example we have a point here say x1 y1. तो x1 y1 point पे ellipse पे अगर tangent draw करना है, so this is a tangent at point x1 y1 to this ellipse. So the equation is given by x square by s square plus y square by b square is equal to 1, where value of b is greater than value of a. Now equation of tangent at point x1 y1 to this ellipse is given by x1 by a square plus y1 by b square is equal to 1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों केस में सेम है. इस इलिप्स के लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही था, x1 by a square plus y1 by b square is equal to 1. Even for this ellipse at point x1 y1, equation of tangent is same, that is x1 by a square plus y1 by b square is equal to 1. तो अभी हमें स्टडी करना है इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड इलिप्स बाय यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हियर. तो हम एज्यूम करेंगे इस इलिप्स को हम शिफ्ट करेंगे एट सम न्यू लोकेशन. यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे और अभी इस इलिप्स का हमें इक्वेशन फाइंड करना है. यहाँ पे हमने शिफ्ट किया तो अभी इस इलिप्स का हमें इक्वेशन फाइंड करना है. इस इलिप्स का न्यू इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है. Now ellipse is shifted from, or center of ellipse is shifted from 0,0 to h, k here. h, k पे हमने शिफ्ट किया है. That means equation of new ellipse is x minus of h whole square by a square plus y minus k whole square by b square is equal to 1. इक्वेशन ऑफ ओरिजिनल इलिप्स मतलब इस इलिप्स का इक्वेशन था x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जस्ट इतना ही चेंज करना है, x की जगह पे x माइनस h, y की जगह पे y माइनस ऑफ k, इतना ही सब्स्टिट्यूट करना है. दिस बाय यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. इवन हमने पैराबोला में भी ये स्टडी किया था. अभी हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा. जैसे कि फोकस यहाँ पे है, ओके, हमें पता है ये डिस्टेंस होगा AE, बिकॉज इलिप्स एज इट इज शिफ्ट किया है, दैट मीन्स फोकस भी एज इट इज शिफ्ट होगा वहाँ पे. एंड वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज AE, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इट बिकम्स h plus AE, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम y एक्सिस. ओके, दिस x एक्सिस. तो फोकस का x कोऑर्डिनेट मतलब ये टोटल डिस्टेंस रहेगा, बट दिस डिस्टेंस इज h, बिकॉज इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज h, सो h plus this is AE, so h plus AE, and y coordinate of this focus is actually k, because इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k, दैट मीन्स ये डिस्टेंस k, दैट मीन्स सेम डिस्टेंस है ये भी. ओके, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज h प्लस AE कॉ k. इस फोकस का कोऑर्डिनेट होगा h माइनस ऑफ AE कॉ k, बिकॉज इवन दिस डिस्टेंस इज AE. सो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब ये टोटल डिस्टेंस h
माइनस ऑफ ए करना है, माइनस ऑफ ए। y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फोकस इज सेम, दैट इज इक्वल टू k। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हमें इस तरीके से फाइंड करना होगा इस केस में। नाउ मेजर एक्सिस, तो अभी इस केस में इलिप्स का मेजर एक्सिस होगा ये, दिस मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज a प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 2a। ओके, साइज वाइज तो इलिप्स में डिफरेंस नहीं है, एज इट इज इलिप्स शिफ्ट कर दिया हमने। दैट मीन साइज वाइज इलिप्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स मेजर एक्सिस लेंथ इज 2a, माइनर एक्सिस लेंथ इज 2b क्लियरली। पर मेजर एक्सिस का इक्वेशन चेंज होगा बिकॉज मेजर एक्सिस का लोकेशन चेंज हुआ है। हमें पता है दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली k, तो ये डिस्टेंस k है। ओके, तो हमने मेजर एक्सिस कैसे डिफाइन किया, y एक्सिस पे k डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मींस y इज इक्वल टू k इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। नाउ दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस रहेगा h, देख सकते हो आप इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज h, ये डिस्टेंस h है। सो माइनर एक्सिस हमने कैसे डिफाइन किया, x एक्सिस पे h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वर्टिकल लाइन है। ओके, so equation of minor axis is x is equal to h here. Equation of minor axis is x is equal to h. Now this is lattice rectum. Lattice rectum का लेंथ एज इट इज है, मतलब सेम है, एज इट इज शिफ्ट किया इलिप्स हमने। ओके, सो डायमेंशंस में कुछ भी चेंज नहीं है। सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम is same, that is 2b square by a, that means this is b square by a, this is b square by a. That means end point of this lattice rectum, x coordinate of this lattice rectum, end point of this lattice rectum, मतलब ये distance that is equal to h plus ae. Y coordinate of this lattice rectum, मतलब ये total distance, but this distance is k plus b square by a, that means k plus b square by a is the end point of this lattice rectum. Even ये lattice rectum for this end point x coordinate will be same, that is h plus ae. Just y coordinate total k और minus of b square by करना है, k minus of b square by a करना है हमें। सेम आप ये वाला फाइंड कर सकते हो अभी यहाँ पे, x coordinate of this end point of this lattice rectum बराबर, मतलब ये डिस्टेंस रहेगा। ओके, ये टोटल डिस्टेंस इज h, माइनस ऑफ ए ही करना है, h माइनस ऑफ ए ही करना है। दैट मींस दिस x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लैटिस रेक्टम, y कोऑर्डिनेट मतलब ये टोटल डिस्टेंस है, दैट इज k, दिस इज k। ओके, दिस इज k प्लस ये डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू k प्लस b स्क्वायर बाय, बिकॉज टोटल इज 2b स्क्वायर बाय, दैट मींस दिस इज b स्क्वायर बाय, दिस इज b स्क्वायर बाय, सो k प्लस b स्क्वायर बाय। तो ये वाला एंड पॉइंट आप फाइंड करो प्लीज। अब डायरेक्ट्रिक्स, इस इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स रहेगा यहाँ पे और सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स रहेगा यहाँ पे, सेम डायमेंशन रहेगा। अगेन दिस डिस्टेंस इज a by e, इवन फॉर दिस इलिप्स डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे था, दिस डिस्टेंस वाज a by e। ओके, इस इलिप्स के केस में डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे था, दिस डिस्टेंस वाज a by e। सो सेम है, इस एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे रहेगा, दिस डिस्टेंस इज a by e हियर। और हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करना है हमें, एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करना है, यहाँ पे ओरिजिन सॉरी। सो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक्स एक्सिस पे, दैट इज इक्वल टू दिस इज h प्लस यहाँ से a बाई ए, देखो आप h प्लस यहाँ से a बाई ट्रैवल करना है, दैट मीन्स h प्लस a बाई ई, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू h प्लस a बाई ई इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हियर। फॉर दिस डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए टोटल इज h, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज a बाई ई, सो टोटल h और माइनस करना है a बाई ई। So equation of this directrix is x is equal to h minus of a by e is the equation of this directrix। तो स्टूडेंट्स ये था एलिप्स। आप अच्छे से नोट्स निकालो, अच्छे से प्रिपेयर करो, लर्न करो। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे हाइपरबोला, देन आई विल अपलोड वन सेशन फॉर एमसीक्यू प्रिपरेशन जिसमें हम करेंगे पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला के अराउंड 40 to 45 एमसीक्यूज इंक्लूडिंग प्रीवियस CET एमसीक्यूज।